भगवद गीता का अध्याय 7 श्लोक 21 से 30 तक। यो यो या तनो भक्त श्रद्धया चित्तुमिच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन मिहते लप्ते च ततः कामान्मेव विहितान् हितान् अन्त्वत्तु फलतेषा तद्भवतिर्मेधसाम् देवान्देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम्पि अव्यक्तम् व्यक्तिमापन्न मनन्ते माम् बुद्धयः पर भावम् जानन्तो ममाविरमनुत्तमम् नाह प्रकाश सर्वस्य योगमाया स्मावृतः नाभिजानाति लोको मां जम्भेयम् वेदाहं सम्पीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मातु वेद न कश्चन इच्छाद्वेष स्मुथेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परतप येषा त्वन्द्वगत पाप जनाना पुण्यकर्मणाम् ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माद्रिव्रता जरामृन् मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मा साधियज्ञं च ये विदुः च मा ते विदुर्युक्चेत्स। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्या योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम Bhagavad Gita, Chapter 7, verses from 21 to 30. Whatever celestial form a devotee, craving for some worldly object, chooses to worship with reverence, I stabilize the faith of that particular devotee in that very form. Endowed with such faith, he worships that particular deity and obtains through that deity without doubt his desired enjoyments as verily ordained by me. The fruit gained by these people of small understanding, however, is perishable. The worshippers of gods attain the gods, whereas my devotees, howsoever they worship me, eventually come to me and me alone. Not knowing my supreme nature, unsurpassable and undecaying, the ignorant persons regard me, who am the supreme spirit beyond the reach of mind and senses, and the embodiment of truth, knowledge and bliss, to have assumed a finite form through birth as an ordinary human being. Veiled by my yogame, my divine potency, I am not manifest to all. Hence these ignorant folk fail to recognize me, the birthless and imperishable supreme deity, i.e., consider me as subject to birth and death. Arjuna, I know all beings, past as well as present, nay, even those that are yet to come, but none, devoid of faith and devotion, knows me. O valiant Arjuna, through delusion in the form of pairs of opposites, such as pleasure and pain etc., born of desire and aversion, all living creatures in this world are falling a prey to infatuation. But those men of virtuous deeds, whose sins have come to an end, being freed from delusion in the form of pairs of opposites born of attraction and repulsion, worship me with a firm resolve in every way. They who, having taken refuge in me, strive for deliverance from old age and death, know Brahma, the Absolute, the whole Adhyatma, the totality of jivas or embodied souls, and the entire field of karma, action, as well as my integral being, comprising Adhibhuta, the field of matter, Adhideva, Brahma, and Adhyajna, the unmanifest divinity dwelling in the heart of all beings as their witness. And they who, possessed of a steadfast mind, know thus even at the hour of death, they too know me alone. Thus, in the Upanishad sung by the Lord, the science of Brahma, the scripture of Yoga, the dialogue between Sri Krishna and Arjuna, ends the 7th chapter entitled, The Yoga of Janana, Knowledge of Nirguna Brahma, and Vijanana, Knowledge of Manifest Divinity. जो सकौम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्मकर व्यक्तिभाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योगमाया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्मरहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से बचते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युगचित वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ अध्याय 7 समाप्त होता है। इससे आगे के श्लोक अगले भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।